بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیور باغ باغ کر میرے سارے کام کرتا، میں بھی اس کو راضی رکھتی۔ ایک روز کپڑے استری کرنے کا بولا تو کہنے لگا بھابی ٹیکس لگے گا اور فائل بھی جمع کروانا پڑے گی۔ میں نے سوچا رات ہوگی دیکھ لوں گی۔ رات ہوئی تو ہوش اڑ گئے۔ دیور استری شدہ کپڑے الماری میں لٹکاتے بولا، چلیں بھابی اب، یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ میں اپنے بازو چھڑاتے چلا رہی تھی لیکن اس نے میری بات ہی نہ سنی۔ جنید خدا کا خوف کرو، تمہارے بھائی کو پتہ چل گیا تو کیا سوچے گا تمہارے بارے میں۔ میں نے اپنے دیور کو اپنے شوہر کا خوف دلانا چاہا لیکن اس کے سر پر تو جنون سوار تھا۔ اس نے میری ایک نہ سنی، وہ مجھے بازو سے کھینچتا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں اپنا پورا زور لگا رہی تھی لیکن خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ جنید چھوڑ دو مجھے، اللہ کا واسطہ ہے، میں منتیں کر رہی تھی لیکن اسے مجھ پر ذرا رحم نہیں آیا۔ وہ مجھے کھینچ کر کمرے کی جانب لے جا رہا تھا۔ خوف سے میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، دل دک دک کر رہا تھا۔ آج تو میرا شوہر بھی گھر نہیں تھا اور پھر میرے دیور نے مجھے کمرے میں دھکیل دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیور کی جانب دیکھ رہی تھی جو اب سرخ آنکھیں لیے میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں پھر سے رونے لگی، مجھے جانے دو پلیز، اور پھر میری آواز گلے میں ہی رہ گئی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر رسید کر دیا۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے اپنے دیور سے ایسی امید نہیں تھی۔ ابھی کل کی ہی تو بات تھی جب دیور میرے سامنے نظریں جھکا کر رکھتا تھا، کبھی اس نے آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھا بھی نہیں، اور آج وہ کیا کرنے جا رہا تھا میرے ساتھ، یہ سوچ کر ہی میری روح لرز گئی اور میں اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگی کہ ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی مجھ سے جو دیور کو یہاں تک لے آئی تھی۔ میری شادی ایسے انسان سے ہوئی تھی جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا سوائے ایک چھوٹے سے بھائی کے، نہ باپ نہ ماں نہ کوئی بہن اور نہ رشتہ دار۔ جب میرا رشتہ آیا تو میں بہت خوش تھی، لڑکا اچھی جاب کرتا تھا، مجھے ساس نندوں کی ٹینشن نہیں تھی، چنانچہ میں نے ہاں کر دی۔ میں اپنی شادی پر بہت خوش تھی، سب کچھ میرے مطابق ہوا تھا۔ میرا شوہر اچھا انسان تھا، وہ زیادہ تر مصروف رہتا تھا۔ میرا ایک 14-15 سال کا دیور تھا جو اسکول میں پڑھتا تھا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ اس کی غیر موجودگی میں سارا کام دیور کرتا تھا۔ وہ صبح اٹھ کر اپنے لیے اور اپنے بڑے بھائی کے لیے ناشتہ بنا دیتا تھا، اتوار والے دن مشین لگا کر کپڑے دھو دیتا، 2 دن بعد پورے گھر کی صفائی کر دیتا، شام کا کھانا باہر سے لے آتا۔ وہ پڑھنے میں اچھا تھا اس لیے رات کو اپنے لیے چائے بناتا تو اپنے بھائی کے لیے بھی بنا دیتا۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ وہ سیدھا سادہ معصوم لڑکا کافی محنتی تھا۔ پھر میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھامتے کہا کہ میرا بھائی بہت چھوٹا تھا جب ماں باپ ایک حادثے میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اپنا اور اپنے بھائی کا پیٹ پالنے کے لیے میں کام کرنے لگا۔ میرے بھائی کو بھی ماں باپ کا پیار نہیں ملا، وہ اللہ کے کرم سے پل گیا اور اب مجھے سنبھال رہا ہے۔ میں بس پیسے کماتا ہوں لیکن گھر کیسے بناتے ہیں یہ میرے 14-15 سالہ بھائی کو اچھے سے پتا ہے۔ اب تم آ گئی ہو نا تو اس کا خیال کرنا، اسے اپنے چھوٹے بھائی یا بیٹے جیسی محبت دینا۔ میں نے یہ سب باتیں خاموشی سے سن لی اور اپنے شوہر سے کہا کہ فکر مت کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے تھوڑا غصہ آیا تھا کہ میرا شوہر اپنے بھائی کی تعریف ہی کیے جا رہا تھا۔ خیر اگلے دن میری آنکھ دیر سے کھلی، دیکھا تو شوہر جا چکا تھا۔ میں باہر آئی تو دیور کو کچن میں چائے بناتے دیکھا۔ آج کل اس کے امتحان ہو رہے تھے اور وہ خوب دل لگا کر پڑھتا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے فوراً عمل کرنا ضروری سمجھا۔ جنید، میں نے اسے پیار سے پکارا۔ جی بھابی، اس نے فوراً ادب سے جواب دیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر مجھے خوف بھی دکھائی دیا تھا۔ میں نے سنا ہے تم ناشتہ بہت اچھا بناتے ہو، میں بھی تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے کراؤ گے ناشتہ؟ میری بات سن کر اس نے حیرت سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ آپ بیٹھے، میں ابھی بنا دیتا ہوں۔ وہ خوش ہو گیا تھا اور پھر خوشی خوشی ناشتہ بنانے لگا۔ میرا پلان کامیاب ہو چکا تھا۔ میں ایک انگڑائی لیتے اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور اپنے بیڈ پر لیٹ کر موبائل چلانے لگی۔ 10-15 منٹ بعد ہی جنید گرما گرم ناشتے کے ساتھ حاضر تھا۔ میری بھوک ایک دم ہی بڑھ گئی تھی، خوشبو تو بہت اچھی آ رہی تھی۔ میں نے تعریف کرتے کہا، بھابی آپ پہلے کھا کر دیکھیں پھر بتائیے گا یہ پراٹھا کیسا بنا ہے۔
और आमलेट भी। इसके चेहरे पर मासूम बच्चों जैसी मुस्कान थी। मैं दिल ही दिल में हंस दी। वो चला गया और मैंने खूब अच्छे से नाश्ता किया। इसके बाद मैं फिर से सो गई। जब उठी तो लंच टाइम था, गर्मियों का मौसम था। अब मेरा कुछ भी बनाने को दिल नहीं था। मैं कुछ सोचते हुए कमरे से निकली और जुनैद के कमरे की तरफ बढ़ी। वो पढ़ रहा था। मैंने इसे कहा कि नाश्ता बहुत अच्छा बना था, अब ऐसा करना लंच भी तुम बनाना, बिरयानी बना लेना, तुम्हारे भाई भी शौक से खाते हैं और मैं भी तुम्हारे हाथ की ही बिरयानी चख लूंगी। इसके बाद तो सारा काम मैंने ही करना। ये बात सुनकर इसके चेहरे पर परेशानी उभरी थी। भाभी, वो दरअसल मेरा कल पेपर है। खैर चलिए, मैं कोशिश करता हूँ। मैं जानती थी वो मेरी बात नहीं टाल सकता था, और वैसे भी उसने पढ़ लिख कर कौन सा अफसर लग जाना था। इसे बिरयानी का बोल कर मैं अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पर चली गई। 3 घंटे बाद लौटी तो सारा घर चमक रहा था। मैं समझ गई थी सफाई मेरे देवर की कमजोरी थी। वो घर को गंदा नहीं देख सकता था और फिर मेरी यही रूटीन चल निकली। अक्सर शोहर बिना नाश्ते किए चला जाता, अक्सर मैं इसे बना देती और अक्सर मेरा देवर। इसके मैट्रिक के पेपर भी हो गए थे। अब वो फ्री होता तो सारा घर का काम भी कर देता था, क्योंकि मैं तो नाश्ते के बाद फौरन सो जाती थी और उठकर अपने कमरे की सफाई कर लेती थी। शाम का खाना भी देवर बनाता और शोहर के आने पर मैं रोटी बना लेती और चाय कभी, जिससे शोहर को लगता सारा काम मैं करती हूँ। हफ्ते बाद कपड़े मेरा देवर धो देता था। वो खामोशी से सारे काम कर लेता था। मेरा देवर अब कॉलेज जाने लगा था। उसका कद काठ मजीद लंबा हो गया था, लेकिन अभी भी मैं इसे काम करवाती थी। इसे कहने की ज़रूरत ना पड़ती थी। अब वो अक्सर देर से घर आता था। एक दिन वो मेरे पास आया और कहने लगा कि कल मैंने फीस जमा करवानी है, आप रात को भाई से बात कर लेना, मैं ज़रा देर से घर आऊँगा। इसकी बात सुनकर मेरी भवें सुकड़ गईं कि अब इसे पैसे देने थे। कॉलेज की फीस कम से कम 1 लाख तो होगी ना, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा शौहर फजूल में इतने पैसे अपने भाई को दे। चुनाचे मैंने शाम को शौहर को बताया ही नहीं, और सुबह हुई तो देवर ने फीस का पूछा। मैंने झूठ बोला और कहा कि तुम्हारे भाई कह रहे थे कि हाथ अभी तंग चल रहा है, इसीलिए पैसों का इंतजाम नहीं हो सकता। ये सुनकर देवर परेशान हो गया, उसका मुंह लटक गया और वो खामोशी से चला गया। मैंने सुकून का सांस लिया और इसके बाद देवर ने दोबारा शौहर से कोई बात ना की। वक्त गुजरता गया, मैं भी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई और देवर भी। अलबत्ता अभी भी जिस दिन जिस वक्त मुझे देवर फारिग मिलता, मैं इसे काम पर लगा देती। मुझे शुरू से ही काम करने की आदत नहीं थी, बल्कि यूं कह लें कि मैं काम चोर थी। मैंने सोचा था ससुराल जाकर नौकरानी रख लूँगी, लेकिन यहाँ मुझे मुफ्त में काम करने वाला देवर मिल गया था, इसलिए नौकरानी की अब भला क्या ज़रूरत थी, क्योंकि रात को देवर सारे बर्तन धोकर और किचन साफ करके सोता था। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन मेरे शौहर ने देवर से पूछ ही लिया कि तुम रात गए तक कहाँ रहते हो। इस पर देवर ने कहा कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। देवर ने स्पार से लहजे में जवाब दिया और चला गया। पहले तो मैं डर गई कि कहीं देवर फीस का जिक्र न कर दे, क्योंकि देवर के नाम पर मैं अक्सर अपने शौहर से पैसे लेती थी। वक्त गुजरता गया, देवर अब बड़ा हो चुका था। वो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया, और वो 2 महीने मैंने किस मुश्किल से गुजारे थे ये मैं ही जानती थी। मुझे पूरे घर का काम करना पड़ता था, जो मुझसे होता नहीं था। मेरे तो जैसे होश ठिकाने आ गए थे। देवर ने घर को न जाने कैसे संभाल रखा था। हर चीज़ परफेक्ट होती थी। अब हर जगह बर्तन बिखरे रहते थे। वक्त यूं ही पर लगाकर उड़ गया। देवर लंबे अरसे के लिए घर से गायब हो गया। कभी कभार देवर से फ़ोन पर बात हो जाती तो कहता, भाभी दोस्त के पास रावलपिंडी रहता हूँ, पढ़ाई जैसे ही ख़त्म होगी वापस आ जाऊँगा। 5 साल बीत गए। शोहर कभी कभार इससे जाकर मिल आता था, और फिर एक दिन देवर वापस आ गया। मैं पहली बार इसके घर आने पर खुश हुई थी। मैंने इसकी खूब आओ भुकत की, अच्छा खाना खिलाया और इसका हर तरह से ख्याल रखा। देवर भी बहुत खुश नज़र आ रहा था। वो पहले से काफ़ी निखर गया था। शाम हुई तो मैंने देखा देवर अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था। मैंने इसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम अपने भाई के भी कपड़े इस्त्री कर दो। देवर ने ये बात सुनी और कहा कि भाभी इस काम का टैक्स लगेगा और फाइल भी जमा करवानी होगी। इसकी बात सुनकर मैं हंस दी। मुझे लगा मजाक कर रहा है। चनाचे मैंने कहा कि ठीक है,
मैं टैक्स अदा कर दूंगी। देवर ने सारे कपड़े इस्त्री कर दिए और फिर जैसे ही शाम हुई तो मुझे अंदाज़ा नहीं था ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। शाम होते ही देवर मेरे कमरे में आया और कहा कि चलिए भाभी फाइल जमा करवाएं। वो काफ़ी संजीदा था, लेकिन मुझे हैरत हुई कि किस फाइल की बात कर रहा है वो। कौन सी फाइल? मैंने हैरान होते हुए पूछा। ये तो आपको ऑफिस पहुंचकर ही पता चलेगा। देवर ने इसी संजीदगी से जवाब दिया। अगर ये मजाक है तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे ज़रूरी काम से जाना है, मैंने लापरवाह अंदाज में कहा और अपना बैग उठाती कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन देवर ने आगे बढ़कर झटके से मेरी बाजू थाम ली। मुझे तो जैसे करंट लगा था। जिस देवर ने कभी मुझे नज़र उठाकर नहीं देखा था, उसने आज मुझे छुआ था और ये बहुत बड़ी बात थी। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा बाजू, मैंने गराते हुए कहा। छोड़ दूंगा, पर पहले सारे हिसाब बराबर करने हैं। देवर का अंदाज कुछ ऐसा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देवर मुझे खींचकर कमरे की जानिब ले जाने लगा। मैं डर गई थी और अब इसे ये कह रही थी कि तुम्हारा भाई तुमसे नाराज हो जाएगा अगर उसने तुम्हें मुझसे बदतमीजी करते देख लिया। पर उसने मेरी एक न सुनी। वो मुझे अपने कमरे में ले गया और एक जोरदार थप्पड़ मुझे दे मारा। और ये थप्पड़ इसलिए कि आपने भाई को हमेशा धोखा दिया। वो गुस्से से लाल पीला हो चुका था। मैं तो हैरान रह गई थी। फिर उसने एक फाइल उठाई और मेरे सामने फेंकी। आप जो छुप छुप कर बिजनेस कर रही हैं, ये इसकी तफसील है। आपके ज़िम्मे जितना भी टैक्स है वो आपको अदा करना होगा। वो क्या बोल रहा था मुझे कुछ समझ न आया। और ये देखें, मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। जानता हूँ आप गलत कामों में मुलविस हैं, लेकिन इससे पहले कि इनकम टैक्स वाले आपको लेकर जाएं, खामोशी से टैक्स अदा कर दें। उसने अपना कार्ड मेरे सामने किया और मैं हैरान रह गई। वो वाकई ऑफिसर बन चुका था। इतना लंबा अरसा वो घर से इसलिए गायब था कि वो ट्रेनिंग पर गया हुआ था। और इस फाइल में वो सारा हिसाब किताब है जो आपने मेरे नाम पर भाई से पैसे लिए, वो सारे आपको आज मुझे अदा करने हैं। मैं खाली खाली नज़रों से देवर को देख रही थी, जाने इसे कैसे मेरे बिजनेस का पता चल गया था। हालांकि मैंने बहुत राजदारी से सारा काम किया था। जानती हैं, जब आप पहली बार इस घर में आई थी तो मैंने आपको भाभी नहीं माँ समझा था। मैं प्यार का भूखा बच्चा था। मैं थक गया था अपने नाजुक हाथों से काम करते करते। पर आपने क्या किया? आपने मुझे नौकर बना लिया। देवर की आंखों में आंसू आ गए और मेरा सर झुक गया। मैं जानता था अगर मैंने इनकार किया तो आप मुझसे नफरत करेंगी, भाई को मेरे खिलाफ भड़काएंगी। इसीलिए मैं खामोशी से आपकी हर बात मानता गया। ये कैसा आईना दिखा रहा था वो आज मुझे। मैं तो जैसे ज़मीन पर गिर गई थी। आप चाहती तो नौकरानी रख लेती, पर नहीं, आपको मुफ्त में सब मिल रहा था। खैर, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मेरे ऑफिस वालों ने ये फाइल मुझे दी है। वो आपको गिरफ्तार करना चाहते थे। मैंने इनकी मिन्नतें की कि मैं आपको मना करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपकी वजह से मेरे भाई की बदनामी हो। और ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रो दी। जाने क्यों मैं पत्थर दिल बन गई थी। मेरे अंदर लालच आ गया था। मैंने अपनी दोस्त के कहने पर शोहर से छुप कर बिजनेस शुरू कर लिया, लेकिन मैं जानती थी ये गलत काम था, पर लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अब वक्त यही था कि मैं तौबा करती, अपने देवर से भी माफ़ी मांग लेती और सारे पैसे इसे दे देती। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। सारा हराम का पैसा इनकम टैक्स वालों को दे दिया। देवर से माफ़ी मांगी। देवर का ये एहसान काफ़ी था कि उसने शोहर के सामने मेरी इज्जत रखी थी। और फिर इस दिन मैं सुधर गई। पैसा तो आनी जानी चीज़ थी। अल्लाह ताला हम सबको नेक हदायत दे और नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।